Namaskar everyone, how are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, from today we are going to start our chapter 8 birds. What is the name of our chapter? It's birds. Birds हम सबको पता है पंछी है ना, हम सबको पसंद है. We all know and we all love birds. So in this chapter we are going to learn about beaks. Birds have beaks यानी चोंच. Second thing, feet and claws है ना. What is the meaning of claws? It means पंजे. जो उनके पैर है, फीट है और पंजे हैं, उनके बारे में हम लर्न करेंगे. थर्ड थिंग, हाउ बर्ड्स फ्लाई यानी वो फ्लाई कैसे करते हैं. नेक्स्ट थिंग, फेदर्स उनके जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं. एंड लास्ट थिंग, नेस्ट ऑफ बर्ड्स यानी उनके जो घोंसले होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव 5 points to learn. First is beak, second is feet and claws, and third is how birds fly. Fourth topic is feathers, and fifth topic is nest of birds. Right? So on the page number 78 we have activity. See, birds are of various colors and sizes. मतलब बर्ड्स बहुत सारे कलर्स के होते हैं और अलग अलग टाइप के उनकी साइजेस होती है, उनमें बहुत सारी वैरायटीज़ है. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. हमें ये पिक्चर देखना है. व्हाट वी हैव टू डू, लेबल द पार्ट्स ऑफ द बर्ड करेक्टली. ऑल्सो राइट one word to describe each part. See, we have to write down, we have to label this part. ये जो बर्ड का पार्ट है ये क्या है, ये हमें यहाँ पे लिखना है. एंड वी हैव टू one word describe each part. इनके बारे में हमें एक वर्ड लिखना है, हमारे माइंड में जो भी आता है ना. ये आप लोगों को होमवर्क में करना है. यहाँ नीचे आपको एक वर्ड लिख देना है जो बीक, जैसे कि बीक. तो बीक के लिए आपको जो भी वर्ड माइंड में आता है यू कैन राइट डाउन. विंग्स, तो विंग्स. फ्लाई है ना, तो यहाँ पे आप फ्लाई लिख सकते हो. तो दीज आर दी डिस्क्राइबिंग वर्ड यू हैव टू राइट डाउन हियर. ओके, दिस इज योर होमवर्क एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू लेबल दिस पार्ट्स. So first thing, first part is beak है ना. We can see beak here, beak. Write down beak. Then second thing क्या है ये, it is wings. तो wings, wings. You can write down wings here. Third one, it's toe है ना, toe, toe. And last it's claw, claw, claw यानी पंजे. तो these are the parts of birds है ना. Now see, birds do not have teeth, they have beaks. हमारे जैसे टीथ है ना, वी चो विथ अवर टीथ. हम खाना खाते हैं तो वी नीड टीथ. बट बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. उनके दांत नहीं होते हैं. दे ईट बाय देयर बीक्स ओनली है ना. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बीक्स, फेदर्स है ना, वेरियस birds. So see, let us now learn about the beaks of birds. Now our first topic is beaks. So now we are going to discuss and explain what is the meaning of beaks and what are beaks and
how various parts of beaks. Okay, so see, beaks, BEAKS. But before we start, let's learn some hard words, and open your fair notebook and write down with me. You have to write down with your pencil with very good handwriting. Okay, so write down chapter's name. It's chapter 8, birds. Hard words. First word is beak. BEAK, beak. Beak यानी चोंच. Second word is sparrow. SPARROW, sparrow. है ना? Sparrow is a bird. Third one is pigeon. PIGEON, pigeon. है ना? You all know pigeon. Fourth word eagle. EAGLE, eagle. है ना? eagle भी सबको पता है? Yes, we all know eagle. Now, fifth word is vulture. VULTURE, vulture. है ना? Write down with very good handwriting. No spelling mistake. Okay? Sixth word is, see, sparrow, pigeon, eagle, vulture. Oh, these are the birds. Okay, now write down sixth word, hawk. HAWK, hawk. Seventh word is hooked. HOOKED, hooked. ये हुक अपने सबने देखा है ना, वो सर्कल जैसा होता है, हाफ सर्कल जैसा, क्वेश्चन मार्क जैसा होता है ना, क्वेश्चन मार्क जैसा होता है, तो हुक्ड उसे कहते हैं. फिर है एट वर्ड टीयरिंग. TEARING, टीयरिंग. टीयरिंग मतलब चीरना फाड़ना. नाइन्थ वर्ड इज वुड पीकर. WOODPECKER, woodpecker. Woodpecker is a bird. 10th word is pointed. POINTED, pointed यानी sharp. होती है ना जो pointed, एकदम sharp. Then poke holes. POKEHOLES, poke holes यानी जिसमें हम छेद करते हैं ना, उसे पोक होल्स बोलते हैं. देन हुपो. HOOPOE, हुपो. हुपो इज अ बर्ड. मडी वाटर. MUDDYWATER, मडी वाटर. मडी वाटर यानी गंदा पानी. ब्रॉड एंड फ्लैट. BROAD, broad and flat. FLAT, flat. ब्रॉड यानी जो एकदम लंबा पौड़ा होता है, जो उसे हम ब्रॉड बोलेंगे, है ना. एंड फ्लैट यानी एकदम फ्लैट हो. फिफ्थ वर्ड worms. WORMS, worms यानी कीड़े. Humming bird is a bird. HUMMINGBIRD, hummingbird. And 17th word nectar. NECTAR, nectar यानी फूलों का रस. Done. So write down all these hard words in your fair notebook and see the page number 79. Beaks. BEAKS, beaks. तो बिक्स का मतलब सबको पता है, इट्स चोंच, है ना, जो पंछी की होती है बीक. तो अ बर्ड यूजेस इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड. यानी हम जैसे खाना खाते हैं, वी ईट विथ अवर हैंड, विथ अवर टीथ, है ना, बट दे डू नॉट हैव हैंड्स एंड टीथ.
So they use their beak to catch and eat food. यानी फूड को कैच करने के लिए उन्हें पकड़ना पड़ता है ना. वो इंसेक्ट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं. तो दे हैव टू कैच द फूड. तो they use their beaks to catch and eat food, even though they eat food by their beaks, right? Now see, different birds have different kinds of beaks depending upon the food they eat. यानी अलग अलग बर्ड्स हैं, उनकी अलग अलग तरह की बीक्स होती है. डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, यानी जिस तरह का वो फूड खाते हैं उन्हीं के डिपेंडिंग, उन्हीं के अकॉर्डिंग भगवान ने उन्हें बीक दी है. उनकी बीक है वो उसी को नज़र रखते हुए डिज़ाइन की हुई है ना. तो लेट्स सी. बर्ड्स such as sparrow and pigeon eat nuts and seeds. यानी sparrows है, pigeon है, they eat nuts and seeds. वो क्या खाते हैं? Nuts and seeds खाते हैं, है ना. These birds have strong, short and hard beaks that help them to crack open their food because they are eating nuts एंड सीड्स. तो बहुत सारे नट्स और सीड्स होते हैं जिनको क्रैक करना पड़ता है ना. तो या ओपन करना पड़ता है. तो उनके लिए उन्हें स्पैरो और पिजन को कैसी बीक चाहिए? दे नीड स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक. और उनकी बीक कैसी होती है? शॉर्ट होती है. एज यू कैन सी, दिस इज स्पैरो एंड दिस इज पिजन. एज यू कैन सी, देयर बीक्स आर सो शॉर्ट बट उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है एंड हार्ड होती है बिकॉज दे नीड टू क्रैक एंड ओपन देयर फूड बाय देयर बीक्स. सो बीक्स आर डिजाइन्ड बाय दे ईटिंग फूड, है ना. जो उनकी फूड है उनके अकॉर्डिंग उनकी जो बीक्स है वो बनाई हुई है. सो स्पैरो और पिजन की बीक्स कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड, विच हेल्प्स देम टू क्रैक एंड ओपन देयर फूड. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. फ्लैश ईटिंग birds such as eagle, vulture and hawk feed on small birds and animals. See, हम सबको पता है ईगल, वल्चर एंड हॉक, दीज आर दी बर्ड्स विच आर ईटिंग फ्लैश. वो क्या खाते हैं? फ्लैश खाते हैं. किन के फ्लैश खाते हैं? दे ईट फ्लैश ऑफ स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स. आपने कभी देखा हो कि एनिमल्स कहीं पे मर गए हैं, वहाँ पे उन्हें फेंकने जाते हैं, है ना, म्यूनसिपैलिटी के लोग. तो वहाँ ऊपर आप देखना बहुत सारे वल्चर और ईगल और हॉक आपको दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो वही खाते हैं, है ना. दे ईटिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स. तो उनकी बीक्स कैसी होती है? दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स फॉर टीयरिंग फ्लैश. क्योंकि उन्हें फ्लैश खाना है तो फ्लैश को चीर फाड़ना पड़ता है ना. तो उनकी जो बीक है वो कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग, शार्प, एकदम शार्प होगी, स्ट्रॉन्ग होगी एंड हुक्ड. एज यू कैन सी, हुक्ड यहाँ से क्वेश्चन मार्क की तरह हुक होती है, मुड़ी हुई होती है ना. तो दिस इज द बीक ऑफ ईगल, वल्चर एंड hawk which are eating flesh of birds and animals. Okay, now see the third paragraph. Birds such as woodpecker have strong pointed beaks. You all know woodpecker है वो क्या करते हैं? वुड में से अपना खाना खाते हैं, वुड को ऐसे खोदते ही रहते हैं ना अपनी चोंच से.
तो वो क्यों खोदते रहते हैं? दे हैव टू लुक फॉर द फूड, वहाँ उनका फूड होता है। वो जो वुड होता है उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, वो ये वुड पीकर है वो खाते हैं, है ना। सच पीक्स helps them to poke holes into hard tree trunks and pull out insects from holes। ये लोग क्या करते हैं? वो पोक करते हैं, है ना, होल्स में, और क्या करते हैं? हार्ड ट्रीज में बार बार छेद करके पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स, वो होल्स जो बनाते हैं उनमें से वो अपनी चोंच की मदद से क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को बाहर खींचते हैं और खाते हैं, है ना। हूपो uses its beak to look for food inside existing tree होल्स। और हूपो क्या करता है? वो भी जो बची हुई ट्रीज़ की होल्स है पड़ी हुई, उसमें से जो आपने सबने देखा है वो ट्रीज़ में होल्स होते हैं, है ना, एग्जिस्टिंग होते हैं, उसमें एग्जिस्ट होते हैं, उसी के द्वारा जो ट्रीज़ और प्लांट्स है वो अपना फूड और एयर एंड वाटर लेते हैं, है ना। तो हूपो है वो उसी होल में से क्या करता है? अपना खाना जो है वो निकालता है। वहाँ से वो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर क्या होते हैं? वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हें वो खाते हैं। तो नाउ लिसन, birds such as woodpecker they have strong pointed beaks। उनकी beaks कैसी होती है? strong and pointed। Such beaks helps them to poke holes into hard trees trunks and pull out insects from holes। और वो होल करते हैं ट्रीज़ में और वहाँ से वो इंसेक्ट्स को बाहर निकाल के खाते हैं। हूपो क्या करता है? हूपो यूजेस इट्स बीक टू लुक फॉर फूड इनसाइड एग्जिस्टिंग ट्री होल्स। और जो ट्री होल्स होते हैं उसमें से वो फूड निकाल के खाते हैं हूपो, राइट। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। Water birds such as duck and goose have broad and flat beaks। जो वाटर बर्ड है, जो वाटर में रहते हैं ना, डक है, गूज है, these are the birds which have broad and flat। broad देखो, आप डक की बीक देखोगे या फिर गूज की बीक देखोगे तो कैसी होती है? ब्रॉड होती है, और फ्लैट, एकदम फ्लैट होती है, जिससे क्या होता है? These birds take in muddy water with insects, worms and plants using their beaks। क्योंकि फ्लैट क्यों होती है और ब्रॉड क्यों होती है? बिकॉज वाटर तो मडी होता है ना, जो पॉन्ड का है या फिर जहाँ से दे ईट देयर फूड, वो वाटर मडी होता है, या फिर चलो क्लीन भी हो तो भी वो क्या करते हैं? अपना जो इंसेक्ट्स या वर्म्स या प्लांट्स है वो उनको कैसे खाना पड़ता है? विथ वाटर, है ना, वाटर में से ही निकालते हैं, तो वाटर तो उन्हें लेना पड़ता है। तो उनकी जो बीक है वो ब्रॉड होती है, जिससे वाटर और जो इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड प्लांट्स है दे कैन ईट ईजीली, है ना, विथ वाटर। सो दे हैव broad and flat beaks। These birds take in muddy water with insects, worms and plants using their beaks, right। Now last paragraph। Birds such as the sunbird and hummingbird suck nectar from flowers। See, hummingbird है, sunbird है, these are the birds which are suck nectar from flowers। उनका फूड क्या है? नेक्टर, यानी फूलों का रस है। तो
तो वो वहाँ से वो उसे चूसते हैं ना. दे आर सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स विच हेल्प टू सक नेक्टर. इनकी जो बीक होती है वो पॉइंटेड होती है एंड लॉन्ग होती है, जिससे क्या कर सकते हैं, दे कैन सक नेक्टर. वो फूलों का रस है वो चूस सकते हैं. तो टुडेज आवर टॉपिक इज बीक, है ना. एंड हमने आज क्या सीखा कि अलग अलग टाइप्स के जो बर्ड्स होते हैं उनकी फूड खाने की जो रीत है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी जो बीक है वो डिज़ाइन करी हुई है ना. तो स्पैरो एंड पीजन उनका जो फूड है वो क्या है, नट्स एंड सीड्स. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक, है ना. नाउ जो फ्लैश खाते हैं, है ना, ईगल, वल्चर एंड होक, दे ईटिंग फ्लैश. तो उनकी बीक कैसी होती है, दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक, है ना. थर्ड वन, वुड पीकर एंड hoopoe. So they have pointed and strong beak because they have to poke holes, है ना, into the tree trunks. तो उसके लिए उनको कैसी बीक चाहिए, pointed and strong. Fourth one, water birds such as duck and goose have broad and flat beaks because they have to take in muddy water with insects, worms and plants. उनका फूड ये है, तो उन्हें कैसी बीक चाहिए, ब्रॉड एंड फ्लैट. एंड फिफ्थ वन, जो सन बर्ड है और हमिंग बर्ड है, दे आर सच बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. वो फ्लावर से अब उनका रस है वो चूसते हैं, है ना. तो उनको कैसी बीक चाहिए, दे नीड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. तो उनकी बीक्स कैसी होती है, दे हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. सो दिस इज़ सो ईजी. आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन क्या खाता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी बीक्स कैसी होती है ना. So you have to write down your hard words in fair notebook and read the chapter on page number 79. ये 5 पॉइंट्स आपको रीड करने हैं और 5 पॉइंट्स में जितने भी बर्ड्स आते हैं उनका फूड क्या है और उनकी बीक कैसी है वो आपको याद रखनी है. ओके, सो बाय बाय फॉर टुडे. विल मीट सून. टेक केयर. Eat healthy and drink more water.